Yes, we are live now. A very good afternoon to everyone. I hope you all are doing great, Rajesh. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਵਜੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 29th ਕਲਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ 15 ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਲਗਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਆਊਟ ਆਫ 15 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਊਟ ਆਫ 15 ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਗਏ। ਬੀ ਜੈਨੂਅਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਜੋ ਰਾਜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ 23 ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਰਾਜੇ ਪੀਐਸ ਚੈਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਾਫੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ। ਸੌਰੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। According to Kohlberg, moral development in the post-conventional stage is characterized by मतलब post-conventional stage ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਟੇਜ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ। ਪੋਸਟ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮਿਡ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਬੀ, ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी। ठीक है जी। ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਦੀ ਏਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਤੋਂ 7, ਠੀਕ ਹੈ। लो एंड ऑर्डर किंदे च आएगा राजे, लो एंड ऑर्डर कन्वेंशनल डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक है जी। कन्वेंशनल 7 तो 13 के 14 है ना, 13 ही बिल्कुल ठीक है। सो सोशल कंट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल किंदे च आ जाएगा, पोस्ट दे विच, पोस्ट कन्वेंशनल। कि सारिਆਂ ਦਾ सही है सी ऑप्शन। जिन्होंने ने सी सही लगाया राजे और आपका 1 नंबर काउंट कर लें कि साढ़ा एक क्वेश्चन सही गया, सी 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 ऑप्शन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी फोकस ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी इज पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, एक्टिव इंगेजमेंट इन लर्निंग या फिर रेपिटिशन एंड रिनफोर्समेंट। प्राइमरी फोकस आप किंदे ते करांगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग ते। हाँ जी आंसर करियो राजे। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब की होंगे जो बच्चा आपकी नॉलेज में खुद की करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। बच्चा को नॉलेज में कदों कंस्ट्रक्ट करेगा, जो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, है ना। एक्टिवली मतलब बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा हर एक चीज़। सो एक्टिवल इंगेजमेंट इन लर्निंग आएगा, सी विल बी राइट आंसर। ना ही रैपिटिशन की गल हो रही, टीचर सेंटर अप्रोच नहीं, पैसिव बिल्कुल नहीं, बच्चे को एक्टिव बनाना आप। सो सी विल बी राइट आंसर। सही है जी सारिਆਂ ਦਾ, जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਊਟ ਆਫ 15 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ। ए बी सी या फिर डी। चलो लर्निंग बाय डूइंग ठीक है जी। एम्फेसाइजेज ऑन रोट मेमोराइजेशन नहीं जी। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, देन इनकरेजमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिल्कुल ठीक है। सो राइट आंसर अपना की बनेगा, बी ऑप्शन। नोट पूछा सी, मैमोराइज आप बच्चे को नहीं करवाना, रटाफिकेशन आप बच्चे को नहीं करवाना। यस क्वेश्चन नंबर 4, differentiated instruction is the best defined as teaching the same way to all learners, grouping all students by ability, adapting instruction to meet varied
वेरिड स्टूडेंट्स नीड या फिर यूजिंग अ सिंगल टेक्स्ट बुक फॉर ऑल। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो जल्दी जल्दी। आता ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਈ ਬਸ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੂਐਂਟ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਦੀ। ਯਸ, क्वेश्चन नंबर 4 ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज द बेस्ट डिफाइन एज अ टीचिंग द सेम वे सारे बच्चों को नहीं आप पढ़ा सकते। डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएट तो ही पॉइंट क्लियर हो रहा है। डिफरेंट ग्रुपिंग ऑल स्टूडेंट्स बाय एबिलिटी नहीं जी। अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू मीट वेरिड स्टूडेंट्स नीड बिल्कुल ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बच्चे दी इंडिविजुअल नीड्स आप सारे अलग अलग लैके चलना है तो उन्होंने अकॉर्डिंग टीच करवाना है। यूजिंग अ सिंगल टेक्स्ट बुक फॉर ऑल नहीं जी। सिंगल क्यों, वाई सिंगल? सो एट द राइट आंसर सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। In a Bloom's taxonomy evaluating is, in a Bloom taxonomy तुसे सारे थ्योरी पढ़ चुके हो, उनके अकॉर्डिंग दसो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आएगा, मिड, हायर या नॉट पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। यस 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 की आंसर आएगा राजे बिल्कुल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी। सी विल बी राइट आंसर। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की गल की सी। ठीक है जी, चलो हाँ जी राजे, जिन्होंने बच्चे ने फर्स्ट टाइम क्लास में ज्वाइन कराया राजे आपने एक तो प्लेलिस्ट जरूर सुनिया जे, क्योंकि कई बार की होंगे बच्चा सिर्फ एको क्लास के बिहाव से देखने लग पैंदा है। बट अज की क्लास जस्ट आप MCQ डिस्कस करनी है तो ही इन्नी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही। बाकी जेकर तुम बैच नूं परचेज करना है तो राजे आ प्राइस रहेगा। जेकर तुम सिर्फ सिलेबस बैच लेना है, जेकर तुम ओवरऑल बैच लेना तो प्राइस में थोड़ा जिहा चेंजिस है, देख लेना। बट एग्जाम की जी या बैच की जी वैलिडिटी है टिल एग्जाम रहने वाली है। ठीक है जी, है ना, डेली मैं इतों ही चेंज कर देनी अपना सेंटेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 6। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स, किनू प्रमोट करते हैं? स्पैशल स्कूल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, सैग्रेशन मतलब अलग अलग टू स्लो लर्नर्स, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल या फिर फोकस ओनली वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत है। चलो विचों दो दी स्टेटमेंट नैगेटिव सेंस आ रही थी, दसो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन के विच आपां हर एक बच्चे नूं हर एक अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग बिठाना है। सो इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सो सी विल बी राइट आंसर। स्पैशल स्कूल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन नहीं जी। सैग्रेशन ऑफ स्लो लर्नर्स, बच्चों नूं जेड़े स्लो लर्नर्स ने उन्होंने अलग बिठा दो बाकी क्लास के कंपैरेटिव नहीं। सो सी विल बी राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 राजे। अ टीचर नोटिस अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग एंड एडजस्ट द टास्क डिफिकल्टी। टीचर की देख रहा है, नोटिस कर रहा है स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है या एडजस्ट कर रहा है टास्क की डिफिकल्टी नूं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट या फिर रिजिड करिकुलम। ए, बी, सी या फिर डी। हुणे तो गल तो किंदी हो रही है, जो बच्चे नूं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रेमीडियल टीचिंग दे रहे हैं आप, है ना। बेसिकली बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, फिर उन्होंने की है टीचर, ठीक है ठीक है ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन च नहीं आएगा, समेटिव च नहीं आएगा, रिजिड करिकुलम नहीं, फॉर्मेटिव च आएगा। जेकर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी नॉलेज नूं इनहैंस करेगा, आपदे जेडे बैरीयर्स बने हुए हैं, रुकावटा बनिया हुई ने जो उनकी लर्निंग डिफिकल्ट हो रही है उन्होंने सही करेगा। सो अपना राइट आंसर बी ऑप्शन बनेगा। समेटिव एट द एंड होंगी, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग सैशन, ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग एग्जाम नहीं कह सकते, बेसिकली नॉर्मल डेज होएगी। सो यस, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर म्यूजिकल, ओके, गार्डनर के अकॉर्डिंग तुसीं दसना है म्यूजिकल इंटरपर्सनल एंड काइनेटिक एबिलिटी आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इंटैलीजेंस, IQ टाइप्स, एप्टीट्यूड लैवल्स या फिर परसनैलिटी ट्रेट्स। तो सारिਆਂ पता है गार्डनर ने किंदी गल की सी, इंट्रा पर्सनल भी आ जाता है, इंटरपर्सनल भी आ जाता है, काइनेस्टिक भी आ जाता है। सो मल्टीपल इंटैलीजेंस आएगा कि एप्टीट्यूड लैवल या परसनैलिटी ट्रेट? वेरी इजी, काफ़ी सारे परस्पैक्टिव की गल की सी, है ना। सो किंदे च आ जाएगा मल्टीपल इंटैलीजेंस। सो ए विल बी राइट आंसर। डन, क्लीयर हो रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही? चलो, अ टीचर हु इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर इन्वॉल्विंग बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है या फिर अथॉरिटेरियन अप्रोच है? बच्चे नूं इनकरेज कर रहे हैं टीचर,
ट्रेडिशनल पुरानी अप्रोच नहीं है, वो तो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, बिहेवियरिस्टिक भी नहीं है, अथॉरिटेटिव भी नहीं है। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सी विल बी राइट आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10th, इन एजुकेशन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਫ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसैस, बिल्कुल ठीक है, डायग्नोस्टिक भी नहीं आएगा। ग्रेडिंग स्टूडेंट ओनली का बिल्कुल नहीं ऑप्शन। सो सारे बच्चे ने सी ऑप्शन लगाइए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी राजे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थोड़े सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, ध्यान नाल सुन लो राजे। जेकर कोई बच्चा अज अपने नाल नवा ज्वाइन होया तो राजे 11 अक्तूबर तो अपना बेसिकली ऑफलाइन फ्री मॉक टेस्ट रहने वाला है। जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है कि मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, जिंदे नाल तुहानूं खुद तुसीं चैक कर सकते हो, आदे आप नूं इवैल्यूएट कर सकते हो कि असीं कितना कुछ स्कोर करते हैं। सो ये बहुत जरूरी है, कोई बच्चा इहनूं इग्नोर ना करे। मास्टर कैडर वाला बच्चा चाहे ईटीडी कैडर, पीएसजेड, पंजाब गवर्नमेंट जॉब, सारिਆਂ ਦਾ ही मॉक टेस्ट रहने वाला है। सो जेकर तुसीं हले रजिस्ट्रेशनस नहीं करवाइयां तो रजिस्टर करवा लो, ताकि तुहानूं जिहड़ा है एडमिट कार्ड पेपर तो या एग्जाम तो पहला मिल जाए तो तुसीं आपदा पेपर वधिया दे सको। ठीक है जी। यस, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेटाकोग्निशन। हाँ, मेटाकोग्निशन, लर्निंग थ्रू रोट मेमोरी, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, आपदी सोच विचार करना, इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों की नकल करना, या मेमोराइज टेक्स्ट बुक आंसर। क्या आंसर बनेगा? जल्दी जल्दी आंसर करो। हम देखो सारिया ऑप्शनस, 3 ऑप्शन सीधा सीधा निगलैक्ट ने। किवें? रोट मैमरी नैगेटिव टर्म है, इमिटेटिंग अदर्स क्यों भाई, नकल क्यों करना? छोटे होंदे बच्चे की गल हो रहा है, नकल करके वो आपदी भाषा नूं एक्वायर कर रहे हो, गल हो रहा है। बट वड्डे हो के आप एक दूजे नकल करना, तुहाडी हर एक दी परसनैलिटी अलग अलग है। सो तुसीं कोई होर बनने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है। सो डी ऑप्शन भी नहीं आना, मैमोराइज लिखा है, रेस्ट ऑफ अपना आंसर की बनता है बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, बी विल बी राइट आंसर, शाबाश। A reflective teacher is one who follow fixed lesson plan, नहीं जी। Avoid feedback, क्यों? फीडबैक क्यों अवॉइड करनी है? बच्चे तो फिर पता किवें चलेगा? रेगुलरली इवेल्यूएट्स एंड इम्प्रूव्स देयर ऑन टीचिंग, ऑन बड़ी पॉजिटिव टर्म है, याद रखिया जे। रिलाइज ओनली द टेक्स्ट बुक, नहीं, इजी सी वाला क्वेश्चन है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी सी सी। यस, क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट लॉज, मतलब वो कह रहे हैं अ परसन हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज, और उस परसन को आपां की कहने हैं जिहड़ा गवर्नमेंट के रूल्स या रेगूलेशनस नूं नहीं मनदा या गवर्नमेंट नूं ही नहीं मनदा। यस, उनका आंसर क्या आएगा? उन्होंने राजे आप बेसिकली अनार्किस्ट कह देने। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिया जे। आ वन वर्ड सबस्टिट्यूशन ने पेपर दे विच पूछे जा सकते हैं तुहाडे तो, सो कॉमन जे ही आपां लैके आए हैं तुहाडे पेपर दे लई। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्पीच मेड विदाउट अ प्रैपरेशन, जी बिना प्रैपरेशन करे जो आप बोलते हैं स्पीच होंगी है, उन्होंने आप कह दें एक्सटेम्पर, या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट, डायलॉग, या फिर मोनोलॉग, ए बी सी या फिर डी। ये तीनों आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास दे विच। सो ए विल बी राइट आंसर आएगा, एक्सटेम्पर कह दें जी स्पीच नूं आप बिना प्रैपरेशन तो यूज करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर लास्ट 15th, अ वर्ड दैट इज़ अ नो लॉन्गर इन यूज़, जोड़ा वर्ड नूं आपां ज़्यादा यूज़ नहीं करते या हले तक यूज़ हो ही नहीं रहा, ऑब्सोलीट, आर्केइक या फिर रिडंडेंट या फिर प्रिमिटिव, ए बी सी या डी। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। अ वर्ड दैट इज़ अ नो लॉन्गर इन यूज़, उन्होंने आप कह दें बेसिकली ऑब्सोलीट। सो ए विल बी राइट आंसर। जल्दी जल्दी राजे कमेंट करके दसो आउट ऑफ 15 किन्ने स्कोर गए, आउट ऑफ 15। सो जिन्ना बच्चे ने व्हाट्सएप फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया राजे, QR कोड से स्कैन कर लेना, दैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जरूर फॉलो कर लेना। चलो आ तुहाडी आंसर की है राजे आपदे आप नूं इवैल्यूएट करन लई। सो आउट ऑफ 15 किन्ने स्कोर है सारे बच्चों ने मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर कमेंट करके दसना है। ठीक है राजे, सो अज दा सैशन आपां इन्ना ही रखते हैं। आई होप कि अज दे सैशन तो बाद तुहानूं खुद नूं भी पता चलिया होगा कि हाँ कितना कुछ सानूं काम आंदा है। थैंक यू राजे, मिलते हैं आपां सेम टाइम ते। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।